संयुक्ता मैम, मैम दे अदर क्लास शेड्यूल्ड है ना, आप अभी इसको एंड कर सकते हैं। क्लास 8 आपका बेटा क्लास जो 44401 पे है, साइंस की क्लास। ओके सर, थैंक यू सर। बाय मैम। बाय सर। बाय मैम। हाँ जी, 7th कैन लीव। बाय मैम। थैंक यू मैम। बाय सर। थैंक यू मैम। हैव अ नाइस डे। बाय मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। बाय मैम। थैंक यू बेटा। बाय। थैंक यू मैम। बाय। Amsterdam. Amsterdam. Huh? Vishank, please mute yourself. हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। Good evening, sir. Evening, sir. गुड इवनिंग। Evening. तो आई होप आपको बेसिक केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। Yes, sir. Yes, sir. Sir, 90%. 90% is a very big achievement. I सर was मतलब पूरा expecting तो नहीं सर, 50%. 90% नहीं सर, मुझे पता नहीं कितने परसेंट, पर सर हाँ, नहीं, still that confidence is there. That's good enough actually, you know, because same concept, same class I held with class 10th also. So if you have gained that, then you'll enjoy metal and non-metal a lot. You know, still up, I will make a Socrative quiz on basic chemistry. तो आप उसको attempt करेंगे, you will gain more confidence. ठीक है? Okay, sir. Okay, so we'll have combustion and flame, you know, for a week, and whenever combustion and flame will end, then we'll start with metal and non-metal. Okay, sir. And exponent and power will finish, है ना, Saturday को last class होगी exponent and power की. And I saw today you had very good questions, Sanjukta ma'am has taken. So Saturday will be last class for exponent and power. And next week we'll start with comparing quantity. So first 1 or 2 classes will revise class 7th concept, and then we'll take up for class 8th and some very interesting questions of competition level also. Yeah. Okay, Anjali ma'am, you can take over the class. Okay, thank you, sir. Okay, class 8. गुड इवनिंग मैम। Good evening, beta. ma'am. Beta class, abhi, is it your break or what? Sir has given you break. Class 8. यस मैम। Oh, ma'am, I think so. Our class should start from 7:30. break, but ma'am, we have just ended our class. I think we have break. अच्छा, ब्रेक नहीं मिला है आपको या ब्रेक मिल चुका है आपको? Ma'am, we haven't got it. नहीं मिला अभी तक। चलो कोई बात नहीं, 2 मिनट का ब्रेक देते हैं. You can have water and then we can start. Just 2 minutes break. That's it. Okay. Yes ma'am. Have water, have breath, and then we'll start. Okay, congratulations, Niyati. Thank you, ma'am.
Okay, class. Everybody is there. Yes, ma'am. Okay, let's start. So on Monday, no, on Tuesday, a Socrative was uploaded for friction, and we did not discuss it because some students didn't attempt it. So today we are first going to discuss the Socrative of friction, and then we are going to move on to the next chapter, new chapter, which is combustion and flame. Clear? So take out your doubts. If you have any doubts in the last Socrative that was posted, let's discuss your doubts. So question number 1, 2, 3, any doubt? You can message me in the chat if you have any doubt. We can discuss it. All right. Question number 1, 2, 3, no doubt. 3, 4, 4, 5, 6. Any doubt in question number 4, 5, and 6? Okay, no doubt. Question number 7, 8, 9. Any doubt in question number 7, 8, 9? No. Question number 10, 11, and 12. Any doubt? Question number 10. Okay. Chalk used by gymnasts is called magnesium carbonate. जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था बेटा तब बताया था मैंने that chalk is called magnesium carbonate. Okay. Question number 11, 12, 13. Any doubt in question number 11, 12, and 13? Excuse me, ma'am. हाँ जी बेटा. Ma'am, actually, ma'am, I just came here now. Ma'am, have you done anything? No बेटा, we are just discussing Socrative. Okay. Okay. Question number 13 doubt है बच्चों को. 13, fluid friction can be minimized by increasing the volume, decreasing the volume, adding salts to the fluid, giving suitable shape. बेटा the answer is giving suitable shape. फ्लूइड फ्रिक्शन में अगर स्ट्रीमलाइन शेप कर देते हैं बॉडी की तो फ्लूइड फ्रिक्शन डिक्रीज हो जाती है. स्ट्रीमलाइन शेप किसकी होती है? फिशेस की होती है स्ट्रीमलाइन शेप. एरोप्लेन्स की होती है स्ट्रीमलाइन शेप. राइट. बर्ड्स की होती है स्ट्रीमलाइन शेप. सो द आंसर इज डी पार्ट, गिविंग सूटेबल शेप. नेक्स्ट डाउट क्लियर? आशना एंड शौर्यांश. Next 14, 15, 16. Any doubt? Ma'am? हाँ जी बेटा. Ma'am, there was a question, ma'am. Streamlining is, and ma'am, the answer was written as making tips thick. Ma'am, tips thin, making tips thin. Yes, ma'am, उसमें thick लिखा हुआ था इसलिए. अच्छा गलत होगा बेटा. It's making tips thin. Okay. 14, 15, 16. No doubt. 17, 18, 19. Yes, ma'am, in the 18th question, ma'am, the answer was given as better grip of their opponents. हाँ, so the right answer is this only, right? अगर कबड्डी प्लेयर्स अपने हाथ में सॉइल रब करते हैं, सॉइल क्यों रब करते हैं? उनके हाथ में स्वेट आ जाता है. तो अगर स्वेट आ गया और उनका ओपोनेंट आया सामने से और उन्होंने अपने ओपोनेंट के हाथ को पकड़ लिया, तो स्वेट आया हुआ है उनके खुद के हाथ में. तो जैसे ही वो ओपोनेंट के हाथ को या ओपोनेंट के पैर को पकड़ेंगे तो स्वेट की वजह से ओपोनेंट का हाथ फिसल जाएगा, वो पकड़ ही नहीं पाएंगे. सो व्हाट दे डू इज दे रब देयर हैंड्स विद द सॉइल या फिर दे रब देयर हैंड्स विद पाउडर. तो जो स्वेट आया है उनके हाथ में वो पाउडर और सॉइल की वजह से चला जाता है. अब जब ओपोनेंट आएगा सामने से तो वो उसको पकड़ लेंगे तो अच्छी ग्रिप बनेगी. सो दे मेक बेटर ग्रिप ऑफ देयर ओपोनेंट्स. क्लियर? Yes, ma'am. Next 19, 20, 21. Ma'am, in question number 19, can you please tell? Question number 19, the machine in which oil and lubricant cannot be used, friction is reduced by beta mainly the answer is I think creating air cushion. I think the answer is D. Yes, ma'am, it was giving this answer. Okay. So what is
what is the question asking? Question is asking कि there are some machines in which it is not possible to use a lubricant. ठीक है, you cannot use a lubricant for some reason. Then how will you reduce the friction? So if you cannot use a lubricant, probably you cannot use a powder also. आप स्पॉन्जी सर्विस भी नहीं बना सकते मशीन के अंदर, तो आप क्या कर सकते हो, एक एयर कुशन बना सकते हो, मतलब एयर गैप बना सकते हो. जैसे मैगलेव ट्रेन में होता है एयर गैप बिटवीन द व्हील्स ऑफ द ट्रेन एंड बिटवीन द रेलवे ट्रैक. सिमिलरली यू कैन मेक अ एयर कुशन. सो एयर कुशन से मशीन के पार्ट्स के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं होगा. Okay, ma'am. 20, 21, 22 डाउट? Class 20, 21, 22, any doubt? No? Ma'am, streamline, ma'am, बोलो. Question number 22. Streamlining is making tips thin. Making tips thin. C या D में से एक ऑप्शन होना चाहिए था making tips thin. ठीक है, दोनों ऑप्शंस को गलत लिख दिया गया है. One of the options should be making tips thin. मैम डी होना चाहिए. डी नहीं गया तो डी करेक्ट था. वो भी है, आपको आंसर पता चल गया ना. ओके. मैम टिप्स और मैम कैट में दोनों में थिन होता है ना मैम. हाँ बेटा. मैम स्ट्रीमलाइन शेप में आगे भी थिन होता है और पीछे भी थिन होता है ना. नहीं, पीछे जरूरी नहीं है, पीछे थिक हो सकता है. ठीक है, इट इज मेकिंग Ma'am. थिन. Ma'am, in And- question number 21, the answer is pointed tips, right? Which shape will have minimum friction in a fluid? Yes, ma'am. Pointed tips. Okay, ma'am. Okay, Thank you. wait for a minute, wait for a minute. Okay, yes. Question number 23, doubt. Ball bearing is used in cycles because ball bearing Ma'am, rolling friction yes. is less than sliding friction. rolling friction is less than sliding friction. All right. Next, 24, 25, 26. Any doubt? Question number 25. Dash powder is used in making carom surface smooth. बोरिक पाउडर बेटा. Okay. दो ही पाउडर है, एक बोरिक पाउडर है जो कैरम पे यूज होता है, एक है मैग्नीशियम कार्बोनेट पाउडर, वो एथलीट्स या जिम्नास्ट्स यूज करते हैं अपने हाथों पे. ठीक है, मैम टैल्कम पाउडर नहीं होता. टैल्कम पाउडर भी होता है, लेकिन बोरिक और मैग्नीशियम कार्बोनेट आर द एग्जैक्ट नेम्स ऑफ द पाउडर. टैल्कम का मतलब ही पाउडर होता है. टैल्कम पाउडर कोई स्पेशल कैटेगरी ऑफ पाउडर नहीं होता है, पाउडर को ही टैल्कम कहते हैं. Question number 26, 27, 28. Any doubt? Ma'am, question 26. Question 27. Tires are threaded. Threaded का मतलब है, टायर्स को कभी ध्यान से देखा हो आपने, जो उनका आगे का सरफेस होता है उस पे ऐसे मार्क्स बने होते हैं. राइट, वो मार्क्स क्या होते हैं, ट्रेडिंग कहते हैं उन्हें. ट्रेडिंग किस लिए होती है? सो दैट अगर पानी आए या कोई भी नीचे सैंड आ जाए, वेट सैंड आ जाए, या टायर के नीचे कुछ भी आ जाए, तो इन ट्रेडिंग की वजह से जो कार है वो फिसलती नहीं है, फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाती है. सो टू गिव एस्केप रूट टू द वाटर ट्रैप्ड इन द टायर्स. टायर के नीचे पानी आएगा तो इन ट्रेडिंग की वजह से वो पानी टायर्स के नीचे से निकल जाएगा. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 26. A matchstick and striking surface have dash to increase glass powder. They have glass powder in between them. Clear? Yes. 28, 29, 30. Doubt?
28. Sprinkling of powder on the carom board. बेटा बड़ा simple question है. Reduces friction by filling up hills and valleys. 29, 30, 31. Okay, next 32. No doubt. Chalo. That completes your friction. Friction is completed in all respects. Handout हम कर चुके हैं. Socrative हम लोग कर चुके हैं. ठीक है. अब हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज. And the name कल तो बात हुई थी कि वो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स होगा. अभी सर ने बताया. तुमने सुना सर ने क्या बोला अपनी क्लास में अनिकेत? सर ने बोला कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स सर नेक्स्ट वीक लेंगे पर्सनली. Sir is interested in taking metals and non-metals with you, so he will take the metals and non-metals class. Okay? मैंने सर से डिस्कस किया था, उन्होंने मुझे कहा कि मैं लूंगा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और इस वीक हम लोग कंबस्शन एंड फ्लेम करेंगे. कंबस्शन एंड फ्लेम भी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी. चलिए. ऑल राइट. द नेम ऑफ द चैप्टर इज कंबस्शन एंड फ्लेम. नाम में दो चीजें हैं. पहला है कंबस्शन और दूसरा है फ्लेम. यानी कि द चैप्टर इज स्प्लिटेड इनटू टू पार्ट्स. The first part of the chapter will talk about combustion and the second part of the chapter will talk about flames. Now combustion. What is combustion? बेटा आसपास आप देखोगे डे टू डे लाइफ में बर्निंग के बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं. बर्निंग में जैसे कि कोई पेपर बर्निंग कर रहा है, कोई गार्बेज बर्निंग कर रहा है. ठंड में देखोगे लोग लकड़ी जला के बैठ जाते हैं हाथ सेकने के लिए. घर में एलपीजी गैस सिलेंडर आता है तो एलपीजी बर्न होती है जिससे हम खाना बनाते हैं. मैच स्टिक बर्न होती है. तो आसपास आपके नेबरहुड में आपकी डे टू डे लाइफ में बहुत सारे बर्निंग के एग्जांपल्स हैं. बर्निंग को साइंटिफिकली इन अ मोर साइंटिफिक वे बर्निंग इज कॉल्ड एज कंबस्शन. ओके. नाउ व्हाट इज हैपनिंग इन कंबस्शन? अभी जितने भी एग्जांपल्स मैंने डिस्कस करे, दैट मीन्स lightning of LPG gas or striking a matchstick and lighting of matchstick, lighting a candle, burning of garbage, इन सभी एग्जाम्पल्स में एक चीज कॉमन थी. क्या कॉमन थी? कि हमें हीट एनर्जी मिल रही है. ठीक है. सो बेसिकली कंबस्शन इज अ प्रोसेस विच जनरेट्स हीट. जब भी कोई चीज बर्न होती है और बर्निंग की वजह से हीट जनरेट होती है, उस प्रोसेस को कंबस्शन कहते हैं. Am I clear? So what is combustion? Combustion is a process. It is a chemical process. Chemical process क्यों बोला है बेटा? क्योंकि इसमें chemical properties change हो जाती हैं. For example, आपने पेपर बर्न किया. पेपर बर्न करने से पहले सेल्यूलोज था. प्लांट में सेल्यूलोज से पेपर बनता है, राइट? अगर आपने पेपर को बर्न कर दिया, अब वो किस में कन्वर्ट हो गया? अब वो एशेज में कन्वर्ट हो गया. इट इज नो मोर cellulose, it is no more wood pulp. It has been converted into different form. So a chemical change is happening. That is why it is called as chemical process. So combustion is a chemical process. Do we have to note this? नहीं, अभी जो नोट करना होगा मैं बताऊंगी. अभी आप पहले ध्यान से सिर्फ सुनोगे. ठीक है. केमिकल प्रोसेस क्यों बोला बेटा? केमिकल प्रोसेस इसलिए बोला क्योंकि केमिकल चेंज हो रहा था. सिमिलरली आप वुड को बर्न करोगे. वुड को बर्न किया तो वुड किस में कन्वर्ट हो गया? राख में, एशेस में कन्वर्ट हो गया. तो वुड डिफरेंट था, वुड का केमिकल कॉम्पोजिशन डिफरेंट था. लेकिन जब वुड की कंबस्टन हो गई, वुड की बर्निंग हो गई, तो अब जो एशेस बच गए उसका केमिकल कॉम्पोजिशन डिफरेंट है. So that is why it is a chemical process, because it leads to chemical changes. So combustion is a chemical process in which substances react with oxygen to produce. अभी मैंने बताया है combustion के end में क्या produce होता है? क्या produce होता है बेटा end में? Heat. Very good. Heat. Excellent. So this is the definition of combustion. यहाँ पे एक चीज और ध्यान से सुनेंगे. It is a process in which substance react with oxygen, O2. यानी कि जब भी combustion होगा तो चाहे आप wood burn करो,
चाहे आप पेपर बर्न करो, चाहे आप मैचस्टिक बर्न करो, या चाहे आप एक कैंडल को बर्न करो, किसी भी चीज को बर्न करोगे तो ऑक्सीजन उसमें यूज होगा ही होगा। आपने छोटी क्लास में एक एक्सपेरिमेंट किया होगा, एक कैंडल को जलाओ, कैंडल को जला के एक ट्रे के अंदर रख दो, ट्रे में थोड़ा सा पानी भर दो और कैंडल के ऊपर एक ग्लास इन्वर्ट करके रख दो। जैसे ही कैंडल के ऊपर ग्लास इन्वर्टेड करके रखोगे, थोड़ी देर बाद कैंडल बुझ जाएगी। जैसे ही कैंडल बुझ जाएगी, जो पानी का लेवल है वो ग्लास में ऊपर चढ़ जाएगा। हैव यू डन दिस एक्टिविटी और नॉट? Yes, ma'am. Yes. So Yes, what ma'am, does this? cut off the supply of oxygen. Yes. So what does this activity show? इस एक्टिविटी में क्या प्रूव कर रहे थे हम लोग? इस एक्टिविटी में हम लोग ये प्रूव कर रहे थे बेसिकली और फायर कैंडल तब तक ही जलेगी जब तक कैंडल के सराउंडिंग में उसको ऑक्सीजन मिलता रहेगा। जैसे ही ऑक्सीजन का सप्लाई कट हुआ, वैसे ही कैंडल बुझ जाएगी। So the moral of the story is that oxygen is very very important for combustion. ऑक्सीजन के बिना complete combustion हो ही नहीं सकता, and oxygen is a supporter of burning. All right, so all of you will write down the definition of combustion. Write down: combustion is a chemical process in which a substance reacts with oxygen to produce heat and light, both the things. लाइट भी प्रोड्यूस होती है और हीट भी प्रोड्यूस होती है। I'm done. ओके, डन। वेट फॉर अदर्स। Ma'am, noted. Combustion is a chemical process in which a substance reacts with oxygen to produce heat and light. What is the other name of combustion? Burning. Very good, burning. अभी मैंने बताया था। बर्निंग को साइंटिफिकली कंबस्टन कहते हैं, या कंबस्टन को नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में बर्निंग कहते हैं। बोथ आर सेम। ओके, now here the question is that in combustion the substance reacts with oxygen. So when the substance reacts with oxygen and produces heat and light, it is called combustion. So now I am writing two equations on the screen. First equation is CH4. CH4. What is this gas? CH4 कौन सी गैस है? मीथेन। मीथेन को जब मीथेन की कंबस्टन होती है, it converts into CO2 and H2O. This is methane. मीथेन जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, हीट प्रोड्यूस होती है, और हीट के साथ साथ क्या प्रोड्यूस होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। Right. So this is a reaction of combustion. This is an example of combustion reaction. Now the next example is, there is a magnesium ribbon. Now the magnesium ribbon burns in presence of oxygen and is converted into magnesium oxide, as well as, okay, it is converted into magnesium oxide. Now my question is this process combustion or oxidation, or both combustion and oxidation? First is this combustion? Ma'am, I think it is both. Ma'am, I think both combustion and oxidation. Yes, ma'am, both combustion मैम and कंबशन तो पक्का है, क्योंकि मैम प्रोड्यूस करता, वो बर्न होता है तभी प्रोड्यूस होता है, तो वही कंबशन हो गया। मैम ऑक्सीडेशन का थोड़ा सोचना है, ऑक्सीडाइज हो रहा है मैग्नीशियम उससे, तो MgO बन जाता है। मैम ऑक्सीडेशन भी होगा क्योंकि मैम फिर वो O2 भी प्लस हो रहा है। Okay. So what is the answer? सब अपना अपना आंसर बताएंगे। चलो मैम चैट बॉक्स, चलो चैट बॉक्स में आंसर लिखो, चलो सभी।
बस 4 बच्चों ने आंसर किया है, बाकी सब कहाँ है? एवरीबडी हैज टू आंसर भाई। Do we need to note down the example of combustion? कर लो, डेफिनेशन के नीचे कंबस्शन का एग्जांपल कर लो। Can you please scroll a bit up? Ma'am, what all we have to note, right? अभी कंबस्शन का डेफिनेशन नोट करना है और ये एग्जांपल नोट करना है, दैट्स इट। ओके, चलो आधे बच्चों, most of the students have written that Mg plus O2 gives MgO is a reaction of combustion and oxidation. The right answer is third part only. So Mg plus O2 gives MgO. So this reaction is a combustion reaction as well as oxidation reaction. बेटा ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जहां पर एक सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा होता है। तो अगर आपको रिएक्शन में कहीं भी ऑक्सीजन नजर आ रहा है, रिएक्टेंट्स वाली साइड पर अगर आपको कहीं भी ऑक्सीजन नजर आ रहा है, तो आप सिंपली आंख बंद कर कर उस रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन मान लो। क्या ये कंबशन रिएक्शन भी है? कंबशन रिएक्शन के लिए क्या जरूरी है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस जरूरी है। Yes, ma'am. तो ऑक्सीजन तो है ही है, और क्या जरूरी है कि प्रोसेस के ड्यूरेशन में हीट प्रोड्यूस हो। तो MgO2, जब मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है और वाइट फ्लेम के साथ जलता है। तो Yes, ma'am. हीट भी रिलीज होती है और हीट के साथ साथ लाइट भी रिलीज होती है। तो यस, बिकॉज इट इज जनरेटिंग हीट when it is combining with oxygen, so this is why it is an example of combustion. मैम Okay. तब तो ऊपर वाला भी होगा। हाँ, ऊपर वाला ऑक्सीडेशन और कंबस्शन दोनों है, सही बात है। मैम ऐसे तो सारे जो भी कंबशन होते हैं वो ऑक्सीडेशन होते हैं, क्योंकि O2 की तो प्रेजेंस चाहिए होती जी है। नहीं, जी नहीं, दिस इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन। आर ऑल combustion reactions oxidation reaction? Are all combustion reactions oxidation reaction? Yes or no? मैम आई थिंक नो। मैम नो। All combustion reaction are oxidation reaction, because in all the combustion oxidation oxygen will be there. जब हमने combustion की definition लिखी, ध्यान से पढ़ेंगे क्या लिखा हमने? हमने दिखा कि substance will react with oxygen. So in every combustion reaction the substance will react with oxygen. So hence all the combustion reaction are oxidation reaction, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन तो होगा ही होगा। मैम बट मैंने अभी वही तो बोला, बट आपने no बोल दिया। But are all oxidation reactions combustion reactions? No, ma'am. अब क्वेश्चन चेंज हो गया है, क्वेश्चन चेंज हो गया है कि क्या सारे कंबशन रिएक्शन, सारे ऑक्सीडेशन रिएक्शन को कंबशन रिएक्शन बोला जा सकता है? Ma'am, I think so. No, all oxidation reactions are not combustion reactions, because in all oxidation reaction heat is not produced. So only those oxidation reactions in which heat is produced, that is called combustion reaction. So write down the statement. Write down the statement, class. Okay, ma'am. All combustion reactions, sorry, all oxidation reactions no, I got confused. Yes, ma'am. All combustion. All combustion reactions, मैम सारे रिएक्शन में केमिकल होता है, केमिकल रिएक्शन। हाँ जी, all combustion reactions are oxidation reactions. जितने भी combustion reactions हैं सब oxidation reactions हैं, but all oxidation reaction are not combustion. जितने भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है वो सारे कंबस्शन नहीं है, क्योंकि कुछ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में हीट जनरेट होती ही नहीं है।
फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है लेकिन हीट जनरेट नहीं हो रही है, H2 plus O2, क्या बन रहा है? वाटर. No heat is produced. This is an oxidation reaction. Oxygen is being combined, right? But no heat is generated. Heat is generated. So this is an oxidation reaction, but this is not a combustion reaction. Am I clear? Yes, ma'am. Class 8th, any doubt up till now? No, ma'am. So far so good? Yes, ma'am. अवनी बेटा क्या रिपीट करना है? मैम हाँ जी. मैम एक तो कम मैम बर्निंग हो गया मैम, दूसरा क्या है मैम? यहाँ पे दो दो लिखे हैं मैम ऊपर में। क्या बेटा कहाँ पर कह रहे हो? मैम इससे थोड़ा ऊपर कर सकते हैं? हाँ जी मैम। मैम यहाँ पे ऑल्टरनेटिव वर्ड फॉर बर्निंग और मैम? बेटा बर्निंग ही आना चाहिए. ओके मैम, यस मैम। और तो मुझे भी नहीं पता. चलो, combustion is an alternate word for burning, or burning is an alternate name for combustion. Ma'am, we need to note down this, right? नोट कर सकते हो, वैसे आपके हैंड आउट में सब कुछ गिवन है. जो नोट करना होगा स्पेशली वो मैं आपको बता दूंगी. Ma'am, till when is today's class? क्या बेटा कब तक है आज की क्लास, ये पूछ रहे हो? Yes, ma'am. 45 तक है, 8:45 तक. Okay, ma'am. अभी है 40 Ma'am? मिनट्स. हाँ जी मैम बेटा. आज की क्लासेस 3 I mean, मिनट they की होती start. हैं। 1 by 1 प्लीज, 1 by 1. हाँ जी बोलेंगे. कौन बोल रहा था? हाँ नियति बोलो बेटा. Yes, ma'am. Ma'am, in the sentence, combustion is alternative word for burning, or ma'am, what is after the blank? Ma'am, Nothing. Alternate word for burning. That's it. Okay. Okay, ma'am. Combustion की definition लिख ली है सबने? Yes, ma'am. Definition के साथ साथ ये example लिख लिया है. CH4 plus O2 gives CO2 and H2O. Yes, ma'am. Okay. Then have you written the statement? All combustion reactions are oxidation, but Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, please. I have not written the example after that. Just a second. okay. Please note it down. Done, ma'am. Okay. Combustion reactions में heat generate होती है, and in most of the cases heat के साथ साथ light भी generate होती है. ठीक है? So जो light generate होती है, that is in form of flame. जो घर में LPG यूज करते हैं हम, LPG सिलेंडर्स हैं. LPG सिलेंडर्स में से जब गैस निकलती है और आप गैस स्टोव ऑन करते हो, जैसे ही आप गैस स्टोव जलाते हो ब्लू कलर की फ्लेम निकलती है, राइट? सिमिलरली जब आप कैंडल जलाते हो तो कैंडल में से भी एक फ्लेम निकलती है. लेकिन कभी कभार जब आप किसी चीज को जलाते हो उसमें से फ्लेम नहीं निकलती. फॉर एग्जाम्पल आपने कोल को जलाया, कोयले को जलाया, उसमें से फ्लेम नहीं निकलती, उसमें से लाइट तो निकलती है, यू कैन सी द लाइट, बट इट इज नॉट इन फॉर्म ऑफ फ्लेम. व्हाट इज दैट फॉर्म ऑफ लाइट कॉल्ड एज? इट इज कॉल्ड एज ग्लो. ओके. Do we have to note the statement? नहीं नहीं, जरूरत नहीं है, आपके हैंड आउट में गिवन है. हैंड आउट पढ़ोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा. Sometimes the light is also produced during combustion. It is in the form of either flame or as glow. तो लाइट एनर्जी जो प्रोड्यूस होगी या तो फ्लेम की तरह दिखेगी. अभी मैंने आपको फ्लेम का एग्जांपल दिया. मैचस्टिक जलाते हो या लाइट जलाते हो, सॉरी मैचस्टिक जलाते हो या कैंडल जलाते हो या घर में एलपीजी सिलेंडर को, गैस स्टोव को जलाते हो तो वहां से फ्लेम निकलती है. लेकिन कोयले को जलाते हो तो फ्लेम नहीं निकलती, तो ग्लो होता है. कोयले में से हल्का हल्का ग्लो नजर आ रहा होता है. ठीक है? तो some substances burn with flame or some substances burn with glow. Am I clear? Yes, ma'am. Okay. Yes, Next. ma'am. One example of
combustion is given burning of charcoal. So when charcoal burns, that is also combustion reaction. Combustion. So this is the same reaction that we did earlier. Methane gas is burning with oxygen and it gives out CO2 Carbon CO2 dioxide and plus water. and H2O. H2O. You Now we have to balance this reaction. Here 4 hydrogen, 1 carbon and 4 oxygen. So what you can do is simply add 2 here. Now how many hydrogens? यहाँ पे 4 हैं हाइड्रोजन, कार्बन 1 है और ऑक्सीजन कितने हैं? 2 2 जा 4. Ma'am 4. यहाँ पर देखेंगे कार्बन कितना है? 1, Ma'am ऑक्सीजन 1. 1 2 एंड 2, ऑक्सीजन 4 और हाइड्रोजन कितना है? 4. तो रिएक्शन इज बैलेंस्ड. Okay. Ma'am, can you please again tell how oxygen is 4 in बेटा CO2 देखो and H2O? CO2 और H2O में ऑक्सीजन 4 कैसे है? O2. हाउ मेनी ऑक्सीजन हेयर? Ma'am 2. 2. हेयर O is 1, लेकिन O के आगे क्या लगा हुआ है? 2. Ma'am 2. ये जो 2 है ये पूरा H2O से मल्टीप्लाई होता है. Okay ma'am, got it. ओके तो यहाँ पर भी 2 हो गया. तो 2 + 2 ऑक्सीजन 4 हो गया. Okay ma'am. ठीक है. नेक्स्ट मीथेन प्लस ऑक्सीजन इज CO2 + H2O. इथेन, इथेन का फॉर्मूला क्या होता है? C2H6 प्लस ऑक्सीजन will give how much? CO2 and H2O. रिएक्शन को बैलेंस करेंगे. कितने कार्बन है यहाँ पर? 2 2. और हाइड्रोजन कितने हैं? 6 Ma'am 6. और ऑक्सीजन है 2. यहाँ पे कार्बन है 1. सबसे पहले तो कार्बन को ही बैलेंस करना है तो कार्बन के आगे 2 लगा दिया. तो ऑक्सीजन कितने हो गए? 2 2 जा 4 4 और यहाँ और ये 5 हो गए. Ma'am in तो यहाँ पर C2H. एक बार 2 लगा के देखते हैं. तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हो गए? 2 2 जा 4. Ma'am 4. नहीं यहाँ 3 लगा के देखते हैं. सॉरी 3 2 जा 6. 6. यहाँ 6 हो गए. उसके बाद यहाँ पर कार्बन हमारे 2 हैं और ऑक्सीजन कितने हैं? 2 2 जा 4 और 1 5. यहाँ पे 2 लगाएंगे तो 6. Ma'am 6. ऑक्सीजन 6 और हाइड्रोजन कितने हैं? Ma'am 6 है तो हाइड्रोजन 4. हाइड्रोजन हमें 6 करने हैं तो यहाँ 3 लगाना पड़ेगा. तो हाइड्रोजन यहाँ 6 हो गए. Yes ma'am. और ऑक्सीजन कितने हो गए यहाँ पर? 2 2 जा 4 3 4 और 3 7. 7. 7 तो गलत हो गया. Yes ma'am. Yes, ma'am. Ma'am I think so it's not balanced. नहीं बैलेंस तो होगी. ऐसा नहीं हो सकता. चलो ओके. ये रिएक्शन होमवर्क है. मैं भी ट्राई करूंगी और आप भी ट्राई करेंगे इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए. एवरीबडी नोट डाउन द रिएक्शन. C2H6 plus O2 gives CO2 plus H2O. All of you will balance the reaction. नेक्स्ट क्लास में हम बैलेंसिंग डिस्कस करेंगे. ठीक है, कैसे हमने इस रिएक्शन Okay, को ma'am. बैलेंस किया. ओके Ma'am, please let note down once again. रिएक्शन के नीचे लिख लेंगे C2H6 इज इथेन, O2 ऑक्सीजन, CO2 is carbon dioxide and H2O is water. So this is another reaction for combustion. इस reaction को भी आप combustion के example में लिख सकते हो. Okay ma'am. Okay, done? Yes, Yes ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Next. Okay.
All right. Now, when the combustion is taking place, the energy is being absorbed. For example, when you are burning a magnesium ribbon, so when you are burning the magnesium ribbon, initially you are giving energy to the magnesium ribbon, right? Initially, the energy is being given to the magnesium ribbon. So once the magnesium ribbon starts burning, now it is glowing as well as it is giving heat energy. जब मैग्नीशियम रिबन बर्न होने लग जाता है तब वो लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी के फॉर्म में आपको एनर्जी दे रहा है. सो द क्वेश्चन हियर इज इनिशियली द एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन ब्रेकिंग द बॉन्ड. तो जब एनर्जी कंज्यूम होती है और कंबस्शन स्टार्ट हो जाता है, कंबस्शन स्टार्ट होने के बाद किस फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है? Initially, you supplied energy to the magnesium ribbon for burning. Now, once the burning has started, the energy is converted into heat and light. very good. Yes. Heat and light. So earlier, the energy was used up, so it was an endothermic process. Initially, वो endothermic process था, but जैसे ही burning start हो गई, so it became exothermic process. It started giving out heat and light. So the heat and light, so energy was converted into heat and light. Am I clear? Yes, ma'am. सबको ये point समझ में आ गया? Yes, ma'am. Okay. Next, inflammable substances. बेटा कुछ substances ऐसे होते हैं जैसे कि मैचस्टिक. आपने जैसे ही मैचस्टिक नहीं सॉरी कैंडल, जैसे ही आपने मैचस्टिक जलाई और कैंडल के पास मैचस्टिक लेके गए, तुरंत कैंडल जल जाती है. ठीक है. जैसे ही आपने पेपर को जलाया, तुरंत पेपर जल जाता है. लेकिन क्या वुड इतनी जल्दी जल जाती है? No, ma'am. वुड को आधे घंटे तक लेकर खड़े रहो फ्लेम के ऊपर आधे घंटे तक लेके खड़े रहो, तब जलेगी. या फिर वुड के अंदर केरोसिन या पेट्रोल या कोई ऑयल डालो, फिर वुड जलेगी, राइट? Yes, वुड ma'am. आसानी से नहीं जलती. तो कुछ सब्सटेंसेस बहुत आसानी से जल जाते हैं और कुछ सब्सटेंसेस बहुत टाइम लेते हैं जलने के लिए. तो जो सब्सटेंसेस बहुत इजीली जल जाते हैं उनको कहते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस. The substances which burn easily are called as inflammable substances. Now, why do some substances burn easily? उनकी जो बर्निंग की वैल्यू होती है वो बहुत ही कम होती है इसलिए. Because उनका जो इग्निशन टेम्परेचर होता है, जो बर्निंग वैल्यू कह रहे हैं उसको इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं, क्योंकि जो उनका इग्निशन टेम्परेचर होता है वो बहुत कम होता है. इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है बेटा? इग्निशन टेम्परेचर मतलब the temperature required to cause burning of a substance. पेपर को बर्न करने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो बहुत कम है और जो वुड को बर्न करने के लिए टेम्परेचर चाहिए वो बहुत ज्यादा है. इसलिए पेपर के पास जैसे ही मैचस्टिक लाते हो, पेपर फटाफट जलने लग जाता है क्योंकि उसको बर्न करने के लिए बहुत कम टेम्परेचर चाहिए. लेकिन जैसे ही वुड को फ्लेम के पास लाते हो, वुड को बर्न करने के लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए. ठीक है. सो इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? द टेम्परेचर, द मिनिमम temperature at which the substance catches fire and burns it. Yes, very good. So the temperature at which the substance catches or fire or burns is called as ignition temperature. And the substances which burn easily because they have less ignition temperature are called as inflammable substances. तो पहले तो ignition temperature की definition लिखेंगे. The minimum temperature at which a substance catches fire. We need to note down this. हाँ, नोट कर लो ये. श्रद्धा बेटा आप have to note the examples. अभी मैं करवा रही हूँ, आप पहले इग्निशन टेम्परेचर नोट करो.
श्रद्धा लिख रही है मैम कंबस्टेबल और इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस सेम होते हैं। मैम देखो हो सकते हैं क्योंकि मैम नहीं दोनों ही नहीं बन नहीं होते नहीं हैं नहीं, नहीं। with अभी अभी O। अभी डिस्कस करते हैं, अभी डिस्कस करते हैं। पहले आप ये डेफिनेशन लिखो मैम वो फिर। तो जो जल्दी नहीं भी होते वो भी तो बर्न करते हैं बाद में, इसमें हम वो चलो अभी अभी डिस्कस करते हैं, अभी सबसे मैम पूछेंगे। इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस तो एक कैरेक्टरिस्टिक होती है ना कंबशन जिनमें होती है उनकी। यस मैम। अभी मैंने क्या बोला पहले नोट डाउन कर लो, फिर हम डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन के बारे में। मैम बट उसके बाद ने यही बोला कि अभी चलो डिस्कस करते हैं। नहीं नहीं मैंने नहीं, अभी चलो मतलब अभी जब लिख लोगे उसके बाद डिस्कस करते हैं। अनिकेत तुमने 7th भी जेनिथ में की थी बेटा? हाँ मैम 6th भी की थी। हाँ 6th तो तुमने मेरे साथ ही करी थी। हाँ मैम। 6th तो मुझे याद है, 7th मैं नहीं थी। ओके हाँ मैम की थी मैंने। ओके। So everybody please note down the definition of ignition temperature. Ma'am, we also need to write also called kindling हाँ जी, temperature. इग्निशन टेम्परेचर को किंडलिंग टेम्परेचर या किंडलिंग पॉइंट भी कहते हैं। किंडल का मतलब होता है आग लगाना। अगर आपने कभी एक प्रोवर्ब है किंडल के नाम, किंडल वर्ड से एक प्रोवर्ब है, मुझे याद नहीं आ रहा। बेसिकली किंडल का मतलब होता है किसी चीज में आग लगाना, फायर कैच करना किसी चीज को, तो इसलिए इसको किंडलिंग टेम्परेचर भी कहा जाता है। मैम अगर इन दोनों प्रोसेसेस को एक लाइक सेम अगर एक तरह से नहीं कह सकते तो अगर देखा जाए इन ये जो है इनफ्लेमेबल प्रोसेस मैम इसका इसके एग्जांपल में तो हम ये कह सकते हैं कि दो सब्सटेंसेस व्हिच कैन अंडरगो कंबशन। नहीं अभी रुको ना, मैंने बोला तो सही, मैं अभी डिस्कस करती हूँ ना। इग्निशन टेम्परेचर की डेफिनेशन सबने लिख ली है बेटा? यस मैम। डन एवरीवन? चलो यस मैम। अब लिखेंगे इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस की डेफिनेशन। मैम लिखिए। इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस की डेफिनेशन में आएगा सब्सटेंसेस व्हिच हैव लो इग्निशन टेम्परेचर, दैट मींस दे कैन कैच फायर वेरी इजीली, are called as inflammable substances. जैसे कि LPG, CNG, petrol, alcohol, all these are inflammable substances. मैम वुड को हम नॉन इनफ्लेमेबल कहेंगे। अभी वो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, अभी नहीं बता रही हूँ मैं। अच्छा ठीक है, सब डेफिनेशन नोट करेंगे इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस की। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन दे रही हूँ, आप सोच के आंसर देंगे मुझे चैट बॉक्स में। ठीक है, क्वेश्चन है आर इनफ्लेमेबल एंड कंबस्टेबल सब्सटेंसेस सेम और नॉट? जिनको लगता है सेम वो लिखेंगे सेम, जिनको लगता है नहीं वो लिखेंगे नॉट सेम। ठीक है, क्या इनफ्लेमेबल और कंबस्टेबल सब्सटेंसेस सेम होते हैं या फिर इनफ्लेमेबल और कंबस्टेबल सब्सटेंसेस डिफरेंट होते हैं? क्लास 8 except for some students like Aniket, Avni, Pavni, Shraddha, except for some students, few students, most of the students do not reply. I don't know why. I also reply, Kush. Okay, Kush also, yes. Sometimes Kush also replies, but most of the people don't reply. Jayashri also replies. Why is it so? Why some students are constantly lethargic and bored in class? I also message. बेटा क्लास तो होगी, रोज होगी, आपको ही अपने आप को चेंज करना पड़ेगा और आपको ही क्लास में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, आपको ही क्लास में एंटरटेन होने का तरीका निकालना पड़ेगा। जैसे बाकी बच्चे एंटरटेन होते हैं, दे पार्टिसिपेट इन द क्लास एंड दे एंजॉय द क्लास, वैसे ही आपको करना पड़ेगा। अगर आप लेम एकदम लेम बैठे रहोगे, पार्टिसिपेट नहीं करोगे, यू विल फील द क्लास इज बोरिंग, you will feel yourself the class is boring, but if you will participate you will enjoy. So please enjoy for your own benefit. मुझे कोई benefit नहीं मिल रहा है, आपको ही benefit मिलेगा। Okay,
ऑल राइट, चलो वेरी गुड, आई हैव गॉट आंसर्स ऑफ द मैक्सिमम स्टूडेंट्स, वेरी गुड। चलो बहुत बच्चों ने आंसर किया है, दे आर नॉट सेम, एंड द राइट आंसर इज दे आर नॉट सेम। देखो इनफ्लेमेबल मैम सब्सटेंस, आई कैन एक्सप्लेन आल्सो। अच्छा अनिकेत वांट्स टू एक्सप्लेन, चलो अनिकेत बोलो। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल कंबशन की डेफिनेशन में ये साफ साफ बोला जा रहा है कि अ सब्सटेंस रिएक्ट विद O2 टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। वेरी तो गुड। मैम कोई सा भी सब्सटेंस उससे रिएक्ट कर सकता है, जो कि करता है। और मैम इनफ्लेमेबल के हैं जो लो इग्निशन है, टेम्परेचर जिनका होता है, और लो इग्निशन होता है कि जो बहुत इजीली बर्न हो जाता है। तो कोई ऐसे सब्सटेंसेस भी तो होंगे ना जिनको टाइम लगता होगा बट वो भी बर्न करते हैं और हीट और लाइट प्रोड्यूस करते हैं, जैसे wood हो गया वेरी मैम। गुड, वेरी गुड, एक्सेलेंट एक्सप्लेनेशन, बहुत अच्छे से अनिकेत ने एक्सप्लेन किया। अनिकेत ने बोला कि कंबस्शन मतलब कोई भी सब्सटेंस जो बर्न हो रहा है वो कंबस्शन, वो कंबस्टिबल है। वुड भी बर्न हो रहा है, वुड भी कंबस्टिबल है, ठीक है। पेपर भी बर्न हो रहा है, पेपर भी कंबस्टिबल है। कोल भी बर्न हो रहा है, कोल भी कंबस्टिबल है। तो जो भी सब्सटेंस बर्न हो रहा है वो कंबस्टिबल है। लेकिन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस में कुछ सब्सटेंसेस इजीली बर्न हो रहे हैं और कुछ सब्सटेंसेस इजीली बर्न नहीं हो रहे। बर्न तो हो रहे हैं लेकिन उनको बर्न करने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जैसे कि वुड को बर्न करने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, या तो उसमें ऑयल डालना पड़ेगा या फिर बहुत देर तक उसमें आग लगा के रखनी पड़ेगी। लेकिन पेपर है वो इजीली बर्न हो जाता है। तो कंबस्टिबल सब्सटेंसेस में वो सब्सटेंसेस जो इजीली बर्न हो जाते हैं उनको इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस कहते हैं। क्लियर? और जो इजीली बर्न नहीं होते उनको नॉन इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस कहते हैं। तो कंबस्टिबल, सो ऑल इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस आर कंबस्टिबल। जितने भी इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस हैं सब कंबस्टिबल हैं, लेकिन ऑल कंबस्टिबल सब्सटेंसेस आर नॉट इनफ्लेमेबल। जो भी कंबस्टिबल हैं जरूरी नहीं है सबके सब इनफ्लेमेबल हो। कुछ इनफ्लेमेबल हो सकते हैं जैसे कि पेपर, पेट्रोल, अल्कोहल, और कुछ कंबस्टिबल नहीं है जैसे कि कुछ इनफ्लेमेबल नहीं है जैसे हाँ, कि आपने उल्टा बोल दिया। सैंड, जैसे कि वुड। मैंने उल्टा नहीं बोला अनिकेत, मैंने सही बोला बेटा। नहीं मैं आपने बोला था ना कि वो कुछ इनफ्लेमेबल जो मतलब फ्लेम करते हैं और कुछ जो चलो कोई बात कंबस्टिबल नहीं, कोई नहीं। बात नहीं, सब कंफ्यूज हो जाएंगे। Ma'am, हाँ बेटा। can you please tell some more examples of non-inflammable substances? ऑफ नॉन इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस, क्लॉथ। क्लॉथ भी आग पकड़ लेता है लेकिन इजीली आग नहीं पकड़ता है, ठीक है। Okay, ma'am. क्लॉथ देखो कपड़ों में भी आग लग जाती है, ठीक है, लेकिन इजीली आग नहीं पकड़ता। तभी जब कोई जल रहा होता है या जब कोई ऐसी जगह फंस जाता है जहां आग लगी होती है उसको ब्लैंकेट से कवर कर देते हैं, क्योंकि कपड़ा इजीली आग नहीं पकड़ता। आग पकड़ लेता है, कंबस्टिबल है, लेकिन इजीली नहीं पकड़ता है। ओके, सो वुड, क्लॉथ। पूछनी है हाँ बोलो। मैम। मैंने देखा है मैम कि मैम जैसे वुड तो मैम ये पक्का है कि वो बहुत देर तक नॉन इनफ्लेमेबल है, पर मैम जनरली नॉन इनफ्लेमेबल है। यस मैम, नॉन इनफ्लेमेबल है। पर मैम मैंने देखा है कि मैम वीडियोस में जैसे मैम जंगल्स में वो दो वुड को लेते हैं, उन दोनों को टकराते हैं और मैम एकदम से फायर हो जाती है। तो मैम बेटा ऐसे वो तो ड्रामा मैम है, वो तो फ्रिक्शन का एक्ट है वो ना। तो फिक्शन है, वो तो ड्रामा है, वो तो कुछ भी दिखाएंगे, ठीक है। यस दो मैम, वो जल्दी फायर। दो नहीं बेटा, वो बेसिकली वुड को आपस में रब नहीं करते हैं, वो स्टोन्स को आपस में रब करते हैं। एक वुड होता है मैम और एक स्टोन होता है, या फिर नहीं, दोनों दोनों स्टोन होते हैं? स्टोन होते हैं। तो आप करके देखो, 2 स्टोन लेके बैठो और 1 घंटे तक Yes, उनको ma'am. बजाते रहो, आग निकल जाए तो बिल्कुल नहीं निकलेगी आग। इतना मैम इजी पर मैंने थोड़ी ना है। देखा है मैम, उससे ना चिंगारियां निकलती हैं हाँ, थोड़ी। चिंगारियां निकलती हैं, वेरी गुड, द स्पार्क इज देयर, बट इतनी इजीली आप 2 पत्थरों के हेल्प से आग नहीं लगा सकते। इट इज नॉट दैट इजी। मैम जैसे और पापनी मैम कह रही स्पार्क थी। निकलती है तो उसके नीचे भी कुछ ड्राई लीफ या फिर वो रखने होते हैं तभी आग हाँ, पत्थर वेरी में। गुड, वेरी गुड। बेसिकली आपको उसके नीचे एक बहुत ही ज्यादा हाईली इनफ्लेमेबल सब्सटेंस रखना पड़ेगा। जैसे Yes, कि चिंगारी से किसमें आग लग सकती है? अगर चिंगारी उसमें चली गई, पेट्रोल में चली गई, या चिंगारी केरोसिन में चली गई तो आग लग जाएगी, फटाफट आग लग जाएगी। या चिंगारी सूखे पत्तों के पास चली गई तो फटाफट आग लग जाएगी।
लेकिन अगर चिंगारी वुड के ऊपर गिरी तो वुड को तो कुछ भी नहीं होगा, वुड को तो पता भी नहीं चलेगा। ओके तो तुम सीरियल्स या जो दिखाते हैं कार्टून्स में उन पे मत जाओ। मैम मैंने कभी कभार देखा है कि जो वुड होता है वो बहुत जल्दी भी आग को कर लेते हैं, जैसे जंगल्स में जाते हैं तो उनको अगर खुली जगह में करे तो। फॉरेस्ट फायर तुमने देखा है मतलब खुद जाके देखा है? मैम मैम, नेशनल ऐसे जियोग्राफिक वीडियोस पे में कोई देखा है। कुछ कह रहा हो क्या? फॉरेस्ट फायर में जैसे कि मैम वो पेड़ तो मैम वुड के ही बने होते हैं, तो Yes, मैम ma'am. अरे फॉरेस्ट फायर में स्टोन से होता है ना, अरे स्टोन भी तो नहीं होते हैं फॉरेस्ट नहीं में। नहीं अनिकेत वेट, फॉरेस्ट फायर कैसे लगती है बेटा? आपने न्यूज में सुना होगा कि जो फॉरेस्ट होते हैं जो बहुत टाइम तक ऐसे पड़े रहते हैं उनमें अपने आप आग लग गई, तो वो आग कैसे लगती है बेटा? जो ड्राई लीव्स होती हैं, ड्राई लीव्स, ड्राई ब्रांचेस, जब वो आपस में दे मूव अगेंस्ट ईच अदर, जब वो आपस में उड़ जाते हैं हवा की वजह से, दे कीप मूविंग अगेंस्ट ईच अदर, दे रब अगेंस्ट ईच अदर। तो जब वो रब करते हैं तो उनकी रबिंग से फ्रिक्शन कॉज होती है, तो फ्रिक्शन की वजह से हीट अप हो जाते हैं, वो इतने हीट अप हो जाते हैं कि दे कैच फायर। कभी कभार सन की इतनी तेज गर्मी होती है तो ऑलरेडी बहुत हॉट होता है, ठीक है, और ऊपर से आपस में दे आर कॉन्टिन्यूसली रबिंग अगेंस्ट ईच अदर, सो इट क्रिएट्स हीट। समटाइम्स सो मच हीट इज क्रिएटेड कि पत्तों में आग लग गई, थोड़े से पत्तों में आग लगी, धीरे 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 सारे पत्तों में आग लगी, धीरे धीरे ब्रांचेस में आग लग गई, फिर लकड़ियों में आग लग गई, फिर पूरे फॉरेस्ट में ही आग लग जाती है। Okay, ma'am. दिस इज हाउ द फॉरेस्ट फायर इज कॉज्ड। ओके Yes, ma'am. चलिए, इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस की डेफिनेशन लिख लिया आप लोगों ने? Yes, ma'am. आप एग्जाम्पल भी नोट डाउन करेंगे? कोई से भी 2 एग्जाम्पल आप नोट डाउन कर सकते हैं, मोर देन सफिशिएंट। Ma'am, noted. ओके सो ऑल combustible भी यूज मतलब नोट डाउन करना है? अभी नहीं, Okay, ma'am. all inflammable substances are combustible but all combustible substances are not inflammable. Okay, all right. combustible substances कौन सी होती हैं? जिनमें इजीली आग लगाई जा सके, वो, या जिनमें आग लगाई जा सके, इजीली नहीं, जिनमें आग लगाई जा सके, कैसे ना कैसे आप उनको बर्न कर सकते हो, दे आर कॉल्ड combustible substances. अच्छा, नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस कौन से होते हैं? जिनको आप चाह के भी कितनी भी कोशिश कर लो आप उनमें आग लगा ही नहीं सकते हो, जैसे कि पानी। पानी आप कितनी भी कोशिश कर लो, यू कैन नॉट मेक द वाटर बर्न। Yes, ma'am. पानी तो आग बुझाएगा ही बुझाएगा, खुद तो कभी जलेगा नहीं। सिमिलरली ग्लास एंड सैंड, आप मिट्टी में भी कभी आग नहीं लगा सकते हो, तभी मिट्टी को भी फायर को बुझाने के लिए यूज करा जाता है, ठीक है। तो नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस आर दोस substances which will not burn at any cost, whatsoever you might do, but they will not burn, so they are called non combustible substances. am I clear? एग्जाम्पल ध्यान रखेंगे नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस का, वाटर और सैंड बहुत ही इजी एग्जाम्पल है, ध्यान रखेंगे। मैम कॉपर ऑब्जेक्ट्स आल्सो। Excuse me, ma'am. हाँ बेटा, मैम जैसे कि आपने कहा कि जो मिट्टी होती है उसे हम मतलब वो जला नहीं सकते, तो मैम पर जैसे 7th में मैंने एसएसटी में पढ़ा था, 7th में एसएसटी में पढ़ा था मैम कि ना एक स्लैश ऑफ बर्न टाइप की मैम वो कुछ होता है, उसमें हम एक जगह को मतलब मैम उससे पूरी आग लगाते हैं और फिर उसको कूल डाउन होकर हम तब तक दूसरी जगह क्रॉपिंग करते हैं। मैम वो तो हम क्रॉप में लगाते हैं। हाँ मैम, हाँ हमें क्रॉप बेटा, दिस इज शिफ्ट एग्रीकल्चर, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कहते हैं मेरे ख्याल से इसको, राइट? शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में क्या करते हैं, एक पैच पे पहले ग्रो करते हैं, फिर दूसरे पैच पे ग्रो करते हैं, फिर तीसरे पैच पे, और जो पुराना वाला पैच है उसको बर्न करते रहते हैं, है ना? ओके मैम। तो आप उसमें सॉइल में थोड़ी ना आग लगाओगे, सॉइल में आग लगा के क्या करना है, बेसिकली यू विल बर्न द क्रॉप्स, तो क्रॉप्स में आग लगाओगे। ठीक है मैम, समझ गई। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनफ्लेमेबल एंड कंबस्टिबल सब्सटेंसेस? वेरी इजी, combustible substances are all the substances which can be burned, but inflammable substances are those combustible substances which can be easily burned. Clear? मैम इनफ्लेमेबल इज अ
characteristic of combustible substances. जो मैंने बोला वो क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Can you also write in inflammable that substance which are very low in हाँ हाँ हाँ, वो भी लिख सकते हो. Okay, ma'am. ओके, व्हाट इज इग्निशन टेम्परेचर? क्लियर? Yes, ma'am. बड़ा इजी है भाई. इग्निशन टेम्परेचर क्या है तो सबको ही पता है. द टेम्परेचर, द लोएस्ट टेम्परेचर. The minimum temperature at which a substance catches fire. अच्छा, ओके. The minimum temperature which is required for a fuel to catch fire is called ignition temperature. अच्छा, ओके. एक फ्यूल है या एक सब्सटेंस है, सब्सटेंस एक्स नाम है उसका, उसको जब मैंने 80 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया तब भी वो जल गया, और 85 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया तब भी वो जल गया. उसका इग्निशन टेम्परेचर क्या है? चैट में डालेंगे, चैट में. I burn it on 80 degree Celsius and 85 degree Celsius. It burns in both the cases. What is the ignition temperature? 80 or 85? The answer is 100% 80 degree Celsius. 80 degree Celsius क्यों है? क्योंकि ignition temperature means the lowest temperature at which it is burning. If two temperatures are given to you and it burns at both the temperatures, so the lowest temperature at which it burns is the ignition temperature. So it is 80 degrees Celsius. Some students are writing less than 80 degrees Celsius. Beta, okay, it can be less than 80 degrees Celsius, but यहाँ पे मैंने less than 80 degrees Celsius का option नहीं दिया. So it is 80 degrees Celsius only. Am I clear? Yes, ma'am. मैम अगर इधर ऑप्शन होता लेस देन 80 डिग्री सेल्सियस तो हम कोई सा भी कर सकते थे 80 डिग्री या नहीं, तब लेस देन. इफ एक ऑप्शन होता इट बर्न्स एट लेस देन 80 डिग्री सेल्सियस, तो आप लिखते द टेम्परेचर which is less than 80 degree Celsius. Clear? Okay, ma'am. Yes, ma'am. हाँ जी, अभी किसी ने हैंड रेस किया था, कौन था वो बच्चा? नहीं मैम, मेरे को वही पूछना था कि मैम वो जरूरी नहीं है कि मैम वो एक्टिव हो सकता है, वही पूछना था. चलो ठीक है. ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन इज अबाउट कैलोरिफिक वैल्यू. What is the calorific value? Now we all know कि जब भी किसी सब्सटेंस को जलाएंगे तो उसके अंदर से हीट एनर्जी निकलेगी. जो हीट एनर्जी होती है बेटा, उसके बहुत सारे यूनिट्स होते हैं मेजर करने के. हीट एनर्जी को आप जूल्स में मेजर कर सकते हो, आप कैलोरीज में मेजर कर सकते हो, आप किसी भी यूनिट में मेजर कर सकते हो. ठीक है, तो जब हम उसको जूल्स में मेजर करते हैं, किलो जूल्स में, दैट इज द एसआई यूनिट ऑफ हीट एनर्जी. Joules is the SI unit of heat energy. So the amount of energy released by the combustion of a substance in joules is called as calorific value. जितनी एनर्जी एक सब्सटेंस में से निकल रही है, कौन से यूनिट में निकल रही है? किलो जूल पर केजी में निकल रही है, उस एनर्जी को कैलोरिफिक वैल्यू कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, मैंने 1 किलो लकड़ी ली, 1 kg लकड़ी ली और 1 kg लकड़ी को जला दिया. 1 kg लकड़ी जब पूरी जल गई, पूरी की पूरी जल गई, अब उसमें से जितनी हीट एनर्जी निकली किलो जूल्स के अंदर, उसको कहेंगे उस लकड़ी की कैलोरिफिक वैल्यू. दैट विल बी द कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ दैट वुड. तो जब आप 1 kg फ्यूल को जलाते हो और उसमें से जितनी किलो जूल एनर्जी निकलती है, उसको कैलोरिफिक वैल्यू कहा जाता है. Am I clear? Yes, ma'am. तो लिख देंगे कैलोरिफिक वैल्यू की डेफिनेशन. अगर लिखना चाहते हैं तो हैंड आउट में गिवन है, सिर्फ लिखेंगे तो याद हो जाएगा, ये बेनिफिट है. तो लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं. Ma'am, for example, when we burn 1 kg of wood, so if 5 kilojoule is produced, so it will be the calorific value of the. Yes, it will be the calorific value of food. Okay. मैम तो ये ककार होता है मैम जो उसमें लिखा होता है. ये क्या होता है?
मैम वो काफी पैकेट्स के पीछे लिखा होता है ना मैम, KCAL मैम दिस वो मच। किलो कैल, हाँ किलो कैल भी कैलोरीफिक वैल्यू का यूनिट है, लेकिन जनरली कैलोरीफिक वैल्यू किलो जूल पर केजी में लिखी होती है। KCAL तो वो होता है ना, अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस। अच्छा तुम वो बोल रहे होगे, वो जो सब प्रोडक्ट के जो पीछे सब, हाँ KCAL लिखा होता है वो ईटेबल्स के रेफर पीछे, ईटेबल्स के पीछे जो किलो कैल लिखा होता है बेसिकली वो एनर्जी है जो हमें उस खाने से मिलती है। जैसे कि अगर हम फैट्स खाते हैं तो 1 ग्राम फैट में 1 ग्राम फैट में 9 किलो कैल होते हैं। हाँ, आपने कुछ ऐसे बताया था इंटू 9 इंटू 4 वाला बोला हाँ था। 1 किलो, अच्छा 1 ग्राम। ग्राम तो इतना छोटा सा होता है। हम नोटेड। चलो, व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू? किलो जूल पर केजी। किलो जूल पर केजी मीन्स heat obtained in kilojoules by 1 पर kg केजी। of substance. क्लियर? और कौन कौन से यूनिट होते हैं? कैलोरी पर ग्राम, मैम किलो कैल पर केजी, जूल्स पर केजी, all these. All right. Produced by 1 kg, मैम it is known as joule. Yes, joules per kg मतलब heat produced by 1 kg of substance, that is joule per kg. Now the highest calorific value is of hydrogen. How many kilojoules? 1,50,000 kilojoules per kg. So high. अगर 1 kg हाइड्रोजन बर्न करोगे तो इतनी सारी हीट एनर्जी रिलीज होगी। दैट इज वाई हाइड्रोजन इज अ वेरी वेरी एक्सपेंसिव फ्यूल। बहुत एक्सपेंसिव फ्यूल है क्योंकि उसकी एनर्जी और उसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज्यादा है। मैम अगर कोई हाइड्रोजन खरीदता है तो वो किस पर्पस के लिए खरीद सकता है हाइड्रोजन को ऐसे? पता नहीं बेटा हाइड्रोजन को किस पर्पस के लिए खरीद। हाइड्रोजन तो रॉकेट्स में भी यूज नहीं होता। रॉकेट्स में क्या यूज होता है? केरोसिन यूज होता है, पता है? हाँ ये तो पता है। कभी केरोसिन। कभी एक्सपेरिमेंट के पर्पस से भी यूज करते हैं हाइड्रोजन को। ओके, एविएशन फ्यूल इज केरोसिन। एविएशन फ्यूल मतलब जो उड़ने के मैम लिए, यूज फॉर जो एरोप्लेन वगैरह जो उड़ने में यूज होता है, जो रॉकेट्स वगैरह में यूज होता है, दैट इज केरोसिन। मैम अभी भी केरोसिन यूज होता है? हाँ बेटा, अभी भी केरोसिन यूज होता है। मैम केरोसिन तो बल्ब्स में भी यूज होता है ना, जो लैंप वाले होते हैं। इसमें हम हाँ पहले लैंप बहुत पुराने हाँ जमाने वाले। हाँ, उसमें भी यूज होता है केरोसिन, राइट। चलो डन। हाँ आपके हैंड आउट में हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू दे रखी है विच इज 1,50,000। ओके, नाउ नेक्स्ट। केरोसिन की कितनी थी? एक बार आप फिर से वो टेबल दिखा। हाँ देख लो, फिर से देख लो। मैम इज दिस टेबल इन द हैंडआउट? नहीं, हैंड आउट में सिर्फ हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू दे रखी है आपको। ओके मैम, जैसे इस टेबल में कोल की जो कैलोरीफिक वैल्यू लिखी है मैम वो है 25,000 माइनस 33,000। माइनस नहीं है, ये 2 25,000 है टू उसके बीच। 33,000 इसके ओके बीच मैम। में। जितना अच्छा कोल की बहुत सारी क्वालिटीज होती है, पता है ना? कोल की बहुत सारी मैम क्वालिटीज टाइप होती है, लिग्नाइट, पीट, बहुत सारे अलग अलग टाइप के कोल होते हैं। तो जितने जो वैरायटी ऑफ कोल होती है, बिट्यूमिनस, ऑल दीज आर वैरायटीज ऑफ कोल। सो हाईएस्ट आई डोंट नो कौन से कोल की होती है। सो कोल की वैरायटी के हिसाब से उसमें से एनर्जी निकलती है। क्लियर? यस यस मैम। मैम। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब क्वेश्चन आ रहा है, इट इज फॉर एवरीबडी। क्वेश्चन है कि हमारी बॉडी में भी एक कंबस्शन रिएक्शन हो रहा है, उस कंबस्शन रिएक्शन का नाम क्या है? प्लीज चैट में लिखेंगे, चैट बॉक्स में डालेंगे आंसर। एक्सीलेंट श्रद्धा, वेरी गुड।
please repeat the वेरी question. गुड आकांक्षा। अनिकेत बेटा प्रोसेस का नाम लिखना है। बेटा हमारी बॉडी में एक ऐसा प्रोसेस चल रहा है जो कंबशन रिएक्शन के बराबर है, कौन सा प्रोसेस है वो? अनिकेत प्रोसेस का नाम लिखना है बेटा। ओके मैम। ओके कोई बात नहीं, जिन बच्चों को नहीं पता उनके लिए द प्रोसेस इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। हमारी बॉडी में कॉन्टिन्यूअसली जो प्रोसेस चल रहा है जिसकी वजह से हमें कॉन्टिन्यूअसली एनर्जी मिल रही है, दैट इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। अच्छा, जो रेस्पिरेशन है अगर हम उसको कंबशन रिएक्शन बोल रहे हैं तो यानी कि रेस्पिरेशन में हीट प्रोड्यूस होनी चाहिए। कंबशन रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस होती है तो रेस्पिरेशन में भी हीट प्रोड्यूस होनी चाहिए। सो कैन वी प्रूव दैट रेस्पिरेशन में हीट प्रोड्यूस होती है? यस मैम, हमारी बॉडी Yes, ma'am. Yes, ma'am. रहती है मैम, गर्म रखता है मैम, वो सब इसी वजह से होता है। क्या बेटा दोबारा रिपीट करो। मैम हमारी बॉडी कभी कभार गर्म ज्यादा भी रहती है और मैम स्वेट भी करती है। ओके वेरी गुड। द आंसर इज बहुत तेज जॉगिंग करके, बहुत तेज रनिंग करके आओ। 1 मिनट तक 60 सेकेंड्स तक बहुत फास्ट रनिंग करो और 60 सेकेंड्स के बाद एकदम से रुक जाओ। आपको रनिंग करने के तुरंत बाद बहुत गर्मी लगेगी बॉडी में और एकदम से पसीना भी आएगा। पसीना क्यों आता है? क्योंकि बॉडी हीट अप हो जाती है। हीट अप क्यों हो जाती है? जब आपने रनिंग करी आपकी बॉडी में ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा एनर्जी बनने लगी। जब आप नॉर्मली बैठे हुए थे तब एनर्जी बन रही थी बट इतनी ज्यादा नहीं बन रही थी, ठीक है। लेकिन जब आप रनिंग करी तो बॉडी की एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ गई, अब एकदम से बहुत ज्यादा एनर्जी बनने लग गई तो बॉडी में जल्दी जल्दी रेस्पिरेशन होने लगा। तो जल्दी जल्दी रेस्पिरेशन की वजह से बॉडी में एक साथ बहुत हीट एनर्जी इकट्ठी हो गई, इसी वजह से आपको गर्मी लगी और इसी वजह से आपको पसीना आया। सो दिस इज द प्रूफ दैट heat energy was produced during respiration. Respiration includes oxidation of glucose, यानी कि ऑक्सीजन भी इन्वॉल्व हो रहा है और हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस हो रही है। सो दैट मीन्स श्योर शॉर्ट respiration is an example of combustion. Am I clear? Yes, ma'am. मैम एक और रीजन है मैम, जब फूड डाइजेस्ट हो रहा है तो फिर मैम ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो रहा है, फिर मैम उधर एक रिएक्शन हो रहा है विथ O2, तो मैम तब जब ये रिएक्शन हो रहा है सो इट विल प्रोड्यूस CO2 वाटर एंड हीट एनर्जी। Yes. वो हीट एनर्जी वो जो प्रोड्यूस हो रही है उसका ही तो मैंने वो बताया प्रूफ। जब रेस्पिरेशन हो रहा था जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी इन फॉर्म ऑफ एनर्जी, उसका ही तो एग्जांपल बताया बेटा। वो हीट एनर्जी हमें पता कैसे चलेगी? जब बहुत तेज तेज रनिंग करेंगे तो वो हीट एनर्जी हमें फील होगी। ओके, सो रेस्पिरेशन इज एन एग्जांपल ऑफ कंबस्टन। क्लियर? सो इट इज 8:45 एंड नया टॉपिक अभी हम कोई स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। सो विद दिस वी विल एंड द क्लास फॉर टुडे। In next class, we will continue the chapter. So till then, please revise what has been done in today's class and we will proceed in the next class. Okay? मैम मुझे एक चीज पूछनी थी। हाँ जी बोलो बेटा। मैम जैसे आपने कहा कि जो रेस्पिरेशन है वो कंबशन होता है उसमें, तो मैम क्या उसमें ऑक्सीडेशन भी होता है? हाँ बेटा, सारे कंबशन रिएक्शन ऑक्सीडेशन है, मैंने यस बताया था। मैम। चलो, थैंक यू मैम। थैंक यू क्लास, थैंक यू। गुड नाइट बाय मैम। मैम। थैंक यू बाय मैम। बेटा, बाय थैंक यू, बाय बाय मैम। बाय बेटा, थैंक यू, थैंक यू मैम। बाय थैंक मैम। यू बेटा, बाय 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 मैम। हैव अ नाइस डे। बाय, थैंक यू, थैंक यू मैम। थैंक यू बेटा।